I'm your host Salim bin Mohammad Rafi, and here is my YouTube channel Zamir Universal. Today I'm going to prove to you that all the parameters in classification of a terrorist or a power state is the United States of America and Israel. Both are the one who should be expelled from United Nations, and I think there should be sanctions against them. I know America being a very rich country and being at the moment enjoying still the superpower, although it's under debt of trillions and trillions of dollars, and most of its green or the dollars are with China. And it's living with a budget deficit for the last 30-40 years. Israel is the same, unless there is a blood transfusion going on from the United States of America. This illegitimate state cannot last for even one day. When you look at the arrogance, when you look at the way the man, a madman, a mentally deranged called Netanyahu, and I'm just going to show you that what happens to these tyrants who when they are on the chair, and the power of that chair, or all their intrigues, all their intelligence agencies, all that, the army and the air force, all the things which they enjoy because one man, one vote, people give and bestow this power on them. I mean, if you bestow that power on a mentally deranged, a mental person, just like a stray dog, no matter what you feed that dog is going to bite you, and you are going to die. And you know that if a mad dog bites you, you get, a very serious disease, and you may have to have 20-30 injections in your belly. Now, Netanyahu is one such person against the whole world. What is the similarities? The similarities between the United States and the United States of America and the Zionist state of Israel are, which is that they invaded with complete immunity 5 countries in the last 20 years. So start from Vietnam, and then Afghanistan, then you know that Iraq, then Libya. Then you can see for yourself that they kept on invading, and then Syria, and they're stealing still the oil of that country. And even in South America, day and night they are interfering in their states, and if they don't like one, they want to change the other one. Now, similarities are the same. At the moment, Israel has, struck his horns with 5 countries, or invaded 5 countries, or they're at war with 5 countries. Let's start. First of all, within himself, Gaza, then it's Rafah border with Egypt, then Syria, then Lebanon, Iran, Yemen. Now, with complete immunity, if a country like that, show me one other country apart from these 2 countries which have invaded there. We talk about the other powers which are much stronger than the United States of America and Israel together, is the Russia and China. Show me one of those 2 countries which they have invaded 6 or 5 countries, or even 4 countries in the past 20 years. None. So, if that criteria is met, what right these 2 countries have to exist? And it is about time that they are conquered or destroyed from within. It's like Roman Empire. When you become so strong like an elephant, then you need some movement from within to destroy and kill you, rather than the other. United Nations Security Council has failed, world has failed, diplomacy has failed. Even Ireland expelled their ambassador. There are 5 or 6 countries which expelled the Israeli, but they are shameless people. They are the most cruelest people on earth. And I just want to show the leaders of the War Council, both in the United States, the Pentagon, and both here in Israel, that how their fate is going to be. Look at, after the fall of Assad, a tyrant who killed so many people there, what is happening to the general when the public takes the law in their own hand. This, and also at the same time, just for similarities, I'm going to show you. This is again from a picture obtained from Twitter.
And it isn't mine, or I don't claim that this picture is taken by me. Whoever did it, I think, is tried to look at the corrective side of this, or just an informative side of this, or warning side of this, is that can happen to you when go back in the box, whether it's the International Court of Justice, whether it's the Israeli Supreme Court, whether it is your neighbors, or that's what's going to happen to both the United States of America and Israel. They will get Joe Biden, because I think my view that all that massacre, genocide, and all those babies burning alive, you see and you notice, and from Gaza, I think they are equally shared by both United States President, who was Joe Biden in the last 4 years, and Israel, Netanyahu. These two, at least, individuals must be accountable made, and they should be charged by the International Court of Justice. Now, if they go for life imprisonment or whatever, I think they decide, people should accept that. इजराइल की निवातम एयर बेस, जहां पर F-35 इनके तैयारे खड़े होते हैं, वहां पर मिसाइल मार दिया है। अब जाहिर सी बात है, जब तक सैटेलाइट इमेजेस नहीं आएंगी तब तक तो नहीं पता चल सकता। आपको याद होगा, पहले जिस सहाफ़ी ने सैटेलाइट इमेजेस से पहले बता दिया था कि यहाँ पर कितने तैयारे हिट हुए, वो तो जेल में चला गया, अमेरिका का था। तो यहाँ पर इन्होंने जो हमला किया है वो कितना तबाहकुन है कि क्या कमाल। उन्होंने कहा है कि हमने टारगेट अचीव कर लिया अपना, और उन्होंने कहा है कि हमने जो हिट किया वो डायरेक्ट जाकर हिट हुआ है। यानी अब तक का सारे हमले आप छोड़ दें, उखाड़ पिछाड़ कर दें, ये हमला इतना खतरनाक है कि आप सोचे, निवातम एयर बेस को अगर आपने उड़ाने का फैसला किया है, कहा था हकीकत टीवी ने आपको कि आप तैयारी कर लें। अब आपको ऐसे, जिसने निवातम बेस को हिट किया था, और वो एक ही मुल्क का नाम था ईरान। देखिए, आप इजराइल को देखेंगे तो इजराइल आपको एक ही ड्रामा करता नजर आएगा। हमने तो इंटरसेप्ट कर लिया, हमने बचा लिए, हमने ये कर लिया। आपको पता है, लास्ट टाइम इन्होंने, ईरान ने भी बड़ी अजीब कहानी की थी। पिछली दफा जब निवातम बेस को हिट किया था, उन्होंने कहा ही नहीं कि हमने निवातम बेस को हिट किया, फलाना किया, ये किया। बाद में सैटेलाइट इमेजेस आई तो पता चला 3 से 4 तैयारे हिट में। F-35 का हिट हो जाना इतना बड़ा नुकसान है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने आज बड़ा क्लियरली बता दिया कि भाई वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करता था, आप हमला करोगे और हम चुप रहेंगे। ये 2016 नहीं है कि अमेरिका ने एक दफ़ा यमन पर हमला किया था, उसके बाद यमन की जरूरत नहीं पड़ी थी अमेरिका पर हमला करने की। आप हमला करके जाते हैं वहां से, अगले आपकी एयरबेस उड़ा देते हैं। आपकी F-35 निवातम एयरबेस थर्ड लगा हुआ था वहां पर। इमेजिन कर लें जरा आप कि यानी अमेरिका जो मिसाइल और ये चीज़ें टेक्नोलॉजी वहां पर रखे, उसके बावजूद ये हिट हुआ। अब कितने, क्या कोई जहाज तबाह हुआ है, क्या हुआ, ये तो जब तक सैटेलाइट इमेजेस नहीं आएंगी तो पता नहीं चलेगा। और ये बात याद रखिएगा, अमेरिका के अंदर रहने वाली कोई सैटेलाइट कंपनी इमेजेस जारी नहीं करेगी। बहुत रेयर केस होगा कि वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर ये काम कर दें। अगर कोई जारी कर सकता है तो वो या चाइना कर सकता है या रूस कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज इजराइल के लिए बड़ा तबाहकुन दिन है। इस वक्त पूरे इजराइल में मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, अखबारात में, इंटरनेशनल सतह पर पिन ड्रॉप साइलेंट है, पिन ड्रॉप साइलेंट। आप इमेजिन करें, उनकी निवातम बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला हुआ है, और इसके बाद की सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में खलबली मची होनी चाहिए, लेकिन हर जगह खामोशी है। ना वो तरदीद कर रहे हैं कि जो मिसाइल आकर हिट हुए हैं उन्होंने कितने F-35 को तबाह किए, नहीं किए, क्या हुआ है, पिन ड्रॉप साइलेंट। सीन अब ये हुआ है कि निवातम एयर बेस पर हमले के बाद आज यमन ने अपना वो दरवाज़ा खोल लिया है जो पिछले काफ़ी अरसे से बंद था। अब वो उस लेवल पर जा रहे हैं कि जहां पर रूस उनको क्या S-400 देने के लिए जा रहा है। देखिए, हुआ ये था कि पिछले काफ़ी अरसे से यमन का एक डेलीगेशन पहुंचा था रूस में, ब्रिटेन से और निचले लेवल पर मुलाकातें हुई। उस डेलीगेशन ने वहां पर जाकर कहा कि देखिए, यमन चाहता है कि हम आपसे रूस से डायरेक्ट डील करें, हमें आपकी तमाम प्रोडक्ट्स चाहिए यहाँ पर। वो चाह रहे थे कि आप मदद भी करें यमन के लोगों की, और हम लोग अफ्रीका से आपकी चीज़ें लेते हैं जो नेचुरल, जितनी भी गंदम या बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि आप डायरेक्ट हमें यहाँ पर भेजा करें।
अब समंदरों की हिफाजत तो हम कर रहे हैं, उस पर पुतिन ने रजामंदी भी जाहिर की। उस पर उन्होंने डिमांड ये की थी कि हमें एडवांस हथियार चाहिए, वो S-400 भी चाह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें। अब S-400 एक ऐसी आइटम है कि आप इमेजिन करें, इजराइल ने जब हमला किया था, आपको ईरान का हमला तो पता है, ईरान ने जो हमला किया इजराइल पर वो कितना तबाहकुन था। जो आखिरी हमला था वो इतना तबाहकुन था कि पूरी दुनिया के अंदर रोंगटे खड़े हो गए थे कि जो हमला किया था। अब आप अंदाज़ा करें 2 मिनट के लिए उस हमले को आप कम से कम 500% से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लें। ये असल में अल्फाज थे इजराइल के कि हम उससे इतने गुना ज़्यादा हमला करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा हमला जो तारीख में कभी भी नहीं हुआ। ये अल्फाज थे नेतन्याहू के। अब जब इन्होंने हमला किया तो आप हमले की हालत देख लें कि लोगों के माइंड के अंदर ये याद ही नहीं है कि इजराइल का हमला क्या था। यानी उन्होंने जो हमला किया था उसमें तकरीबन 20% उन्होंने अपना हमला कामयाब किया, 80% रोक लिया, और उसको जो रोका था वो S-400 ने रोका था। अब S-400 जाहिर सी बात है एक ऐसी बला है जो कि दुनिया में आपके लिए बड़ा काम करता है। आप सोचें, इंडिया वो इस्तेमाल करता है, रूस वो इस्तेमाल करता है, चाइना कभी ज़िंदगी में किसी का डिफेंस सिस्टम इस तरह नहीं लेता जब तक उसको ये पता ना हो ये कोई बला है। तो चाइना भी S-400 इस्तेमाल करता है, तुर्की के पास भी S-400 है, और बहुत सारी ताकतें। अब यहाँ जो सीन असल में है वो बड़ा ही हैरानकुन है कि यहाँ पर S-400 के लिए जो ईरान में लगा था वहाँ पर रूस के ऑपरेटर भी थे, उन्होंने हमला रोका। तो यमन की जानिब से कहा गया कि हमें डिफेंस सिस्टम चाहिए, और जाहिर सी बात है अब यमन का मुकाबला जो हो रहा है वो F-35 आ रहे हैं, यानी कोई F-16 नहीं आ रहे। मिनिमम आप देखें तो F-18 का एडवांस वर्जन आ रहा है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने बात की थी, उस वक्त रूस की जानिब से हामी नहीं भरेगी। उनको एक इशारा दिया गया कि यानी आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, आप अपना लेवल बढ़ाएं, तो फिर इस बारे में सोचा जा सकता है कि हम आपको दें, क्योंकि उनको भी खतरा है कि S-400 आता है तो जाहिर सी बात है उसको तबाह करने की कोशिश करेंगे यमन के अंदर, और ये रूस रिस्क नहीं लेना चाहता। रूस चाहता है वो अपना लेवल बढ़ाए। आज उन्होंने जो हमला कर दिया है, उन्होंने सारे लेवल क्रॉस कर दिए हैं। आपने उनके उन तैयारों को हिट करने की कोशिश की है या हिट किया है, ये तो सैटेलाइट इमेजेस आएंगी तो पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है। जो F-35 है, F-35 ऐसे तैयारे हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर अमेरिका, बड़े बड़े ममालिक को अगर सिर्फ इतना कह दे कि हम आपको 500 गुना ज़्यादा कीमत पर देने को तैयार हो, तो सब लेने को तैयार हो जाएंगे लाइनों में लग के। जाहिर सी बात है अमेरिका के पास F-35 से ऊपर क्या है, और इजराइल के पास आपको पता है अपग्रेडेड वर्जन है। तो इस वक्त जो सीन हुआ है वो गालिबन अब आपको नज़र आ रहा है कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं S-400 लेने के लिए। अनकरीब 2 डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। एक तो बड़े खतरनाक मिसाइल जो रूस के पास हैं वो यमन आने वाले हैं। यमन अब उन मिसाइलों को इजराइल को तो टारगेट करेगा, वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी टारगेट करने के लिए जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट करेगा, जाहिर सी बात है बदले में उस पर होंगे हमले। ये जो बहुत सारे हमले होंगे मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज पर, वो करेगा यमन, लेकिन उसके पीछे रूस के टारगेट्स होंगे। यानी मिसाल के तौर पर रूस असल में अब इजराइल के भी खिलाफ है, क्योंकि उसने जो शाम के अंदर किया है, पहले वो इसराइल के खिलाफ था लेकिन अमली तौर पर मामला सामने नहीं थे। अब जो उन्होंने शाम के अंदर किया, जाहिर सी बात है जिन जगहों पर रूस के फौजी अड्डे थे वहाँ पर इजरायली आ गए हैं और उन्होंने वहाँ से उनको निकाल दिया है, और ये बात उनको हजम नहीं हो रही। तब वो ये चाह रहे हैं कि रूस पर हमला हुआ है इस सारे सेंस में, तो कोई ताकत ऐसी खड़ी हो जो अमेरिका पर भी हमला करे, बरतानिया पर भी हमला करे, और उसके साथ साथ इजराइल पर हमला करे। तो अब आ रहा है रूस मैदान में। अब अनकरीब आपको नजर आएगा कि S-400 के बारे में अमेरिका आपको इन्फॉर्म करता हुआ नजर आएगा कि यमन के पास S-400 आ गया। अब वो S-400 यमन के लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आएंगे रूस के ऑपरेटर्स, वो यहाँ पर आएंगे ओपनली आकर, यानी जो लगाएंगे, और खुफिया तौर पर ये मुकम्मल तौर पर इसको ऑपरेट करते हुए आपको नजर आएंगे। और जो अमेरिका और इजराइल के तैयारे आएंगे हमला करने के लिए, उनके मिसाइलों को रोकेंगे, उनको टारगेट करेंगे, बदले में साथ इनको मिसाइल दिए जाएंगे जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी हिट होंगे और उसके साथ साथ इजराइल के अंदर हिट होंगे। अब इसराइल में जो हिट होंगे, अब असल में बड़े लेवल के टारगेट हिट होने जा रहे हैं। देखिए, एक तो आप ज़हन में रखिएगा कि अब जो हमला होगा उसमें
जो ये इजराइल हमला करेगा उसके 2-3 घंटे के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी जानिब से हमला होगा। यानी अब कोई सूरत हाल ऐसी बाकी नहीं रहेगी कि जो हमला ना हो, फलाना ना, तो इस तरह की सूरत हाल तो अब होने वाली है। आज आप देख लें कैसी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इजराइल ने ऐलान किया है कि हम पर यानी गजा से 2 लॉन्ग रेंज रॉकेट्स जो हैं या वो मिसाइल हैं, उन्होंने कहा है कि हम पर मारे गए हैं। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि जिन एरिया से मारे गए उन एरियाज को खाली कर दे। यानी ये कैसा ड्रामा होता है कि आप फौरी तौर पर ऐलान कर देते हैं यहाँ से आए, चलो जी अब यहाँ पे हमने सफाई करने, हम हमला करने, लोग यहाँ से निकले। रूस को इस बात का बड़ा शदीद गुस्सा है। अब कुछ मिसाइल उनको चाहिए थे कि जो हिट कर सके। एक ताकत ही ऐसी बची है जो अमेरिका को भी हिट कर सकती है, जो इजराइल को भी हिट कर सकती है और बरतानिया को भी, और वो है यमन। और आपको एक और बात ज़हन में रखनी चाहिए याद कि अनकरीब आपको ऐसी भी सूरत हाल देखने को मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और वो सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब होगी कि हो सकता है अनकरीब आपको नजर आए कि यमन के पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी हैं। जाहिर सी बात है यमन ने खुद तो नहीं बनाए, लेकिन उनके पास पहुंचे हुए। देखिए उनके एयरपोर्ट पर हमला हुआ, चंद घंटे के बाद उन्होंने एयरपोर्ट को रिपेयर करके फ्लाइट्स को रिज्यूम करना शुरू किया। उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया हम क्या कर सकते हैं। अब आप गौर करें, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ। बेन गुरियन एयरपोर्ट के साथ साथ उन्होंने, आप सोचें किस लेवल पर जाकर, निवातम बेस पर भी हमला कर दिया। ये कुछ छोटी डेवलपमेंट्स नहीं है कि आप 2000 किलोमीटर दूर से मिसाइल मारें और 10 मिनट के अंदर जाए और जाकर हिट कर दे। अब आप ये सोचें कि जब आपने ये बता दिया कि हम इस लेवल पर हिट कर सकते हैं, तो रूस अब आपको वो मिसाइल देगा जो मिसाइल आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि किस लेवल पर जाकर तबाही मचा सकते हैं। क्योंकि आपको देखिए, कोई भी मुल्क अपने मिसाइल देता है, कोई चीज़ें देता है, तो उसका मफाद होता है। और वो यहाँ पर एक और भी चीज़ सोचता है कि मेरे मिसाइलों की हिफाजत भी हो। क्योंकि देखिए इसराइल काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, बरतानिया के यहाँ पर हमें इनके जो मिलिट्री डिपोज हैं या मिलिट्री ख़ास तौर पर इन्होंने जहाँ पर मिसाइल स्टोरेज है इनकी, हम वहाँ पर जाकर हमले करें ताकि इनके मिसाइलों को तबाह करें। जहाँ से लॉन्च करते हैं वहाँ तबाह करें, जहाँ से ऑपरेशन करते हैं वहाँ तबाह करें, लीडर्स जहाँ बैठते हैं वहाँ तबाह करें। अभी तक उन्होंने हमले किए हैं सारी जगहों पर, इनको जेल में रखें, लेकिन कामयाबी नहीं अभी तक मिल पाई है। आप जेल में रखिएगा। हमले बेशक उन्होंने किए हैं, कामयाबी उनकी उस लेवल पर नहीं हो पाई जो वो चाह रहे थे। सिविलियन को मारा जाता है। अब सूरत हाल जो सामने आई है वो तो बड़ी अजीबो गरीब है कि WHO के डायरेक्टर को उन्होंने हिट किया है, वो तो बच गया है, लेकिन साथ उनका अमला और दूसरे लोग कुछ मारे गए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं। तो यानी आप ये सोच लें कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा और वो किसी को बख्शने वाले हैं भी नहीं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब अगला मरहला तो सिर्फ ये सामने क्लियर नज़र आ रहा है कि अगर रूस के हाथ से, ये याद रखिएगा, यमन भी चला गया और अगर इसको उसने ना सपोर्ट किया तो फिर आने वाले वक्त के अंदर फिर रूस को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अब मिडल ईस्ट के अंदर अगर हालात ही बड़े क्लियर हैं और सीधा जाकर वो फिर सारे का सारा फोकस हो जाएगा यानी पूरी तरह यूक्रेन के ऊपर और ख़ास तौर पर रूस के ऊपर, तो ये वो काम नहीं करना चाहता। तो इस सूरत हाल में अब आपको नज़र आएगा लॉन्ग रेंज मिसाइल आएंगे और उसके साथ साथ एक बड़े लेवल पर S-400 होगा, लेकिन ऐलान नहीं होगा। एग्जैक्टली वही सूरत हाल होगी जो ईरान वाली है। आपको पता तब चलेगा जब आपको 2-3 खबरें मिलने को, यानी अंदाज़ा होगा आपको कि सुनने को मिलेंगी। एक खबर आपको ये मिलेगी कि जी अमेरिका के तैयारे गिरा दिए। एक आपको खबर सुनने को मिलेगी कि इसराइल का हमला भी नाकाम बना दिया, इसराइल के कुछ तैयारे या कुछ चीज़ें गिरा दी। अब वो इंटरनेशनल वाटर्स में भी गिर सकते हैं, यहाँ भी गिर सकते हैं। जो भी सूरत हाल हो, अब इसराइल का मुकाबला तो होगा रूस के साथ और ये फिर लड़ाई जो होगी ये बड़े पैमाने पर होगी और यही सूरत हाल अब आपको होती हुई नजर आएगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप उनको वहीं पर तबाह कर दें कि वो उड़े ही ना, फिर क्या होगा? देखिए ईरान पर तो हमला नहीं होगा ना, अगर इस सेंस में देखा जाए, अनटिल के इजराइल की को मत मारेगी वैसे वो कर सकता है, लेकिन बजाय तो वो यमन पर ही हमला करेंगे ना। तो आप यमन पर हमला करने की बजाय ईरान के एक्सपर्ट और रूस के एक्सपर्ट वहाँ पर बैठकर हमला करें तो आप सोचो इजराइल की इंडसेट बजेगी कि नहीं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि मल्टी डायमेंशन इस वक्त इजराइल पर मुसल्लत है। देखिए इसराइल को आज इस बात का सबसे बड़ा जो नाज था हमेशा से रहा है वो F-35 है
ये F-35 तो अमेरिका के पास भी नहीं है। ये आपको पता है कि इसराइल पार्ट्स बनाकर देता है F-35 के, और F-35 की एक डील है उनकी अमेरिका के साथ, आपने मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री को F-35 नहीं देने या वो वेपन्स नहीं देने जो हमारे बड़े एडवांस लेवल के हैं वेपन्स, वो आपने इनको नहीं देने, किसी सूरत नहीं आपने इनको देने हथियार जो हमारे लेवल के। 1973 के अंदर उन्होंने मुआहदा किया था। अब आप ये सोशल मीडिया पर, अखबारात में, इंटरनेशनल सतह पर पिन ड्रॉप साइलेंट है, पिन ड्रॉप साइलेंट। आप इमेजिन करें उनकी निवातम बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला हुआ है, और इसके बाद की सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में खलबली मची होनी चाहिए, लेकिन हर जगह खामोशी है। ना वो तरदीद कर रहे हैं कि जो मिसाइल आकर हिट हुए हैं उन्होंने कितने F-35 को तबाह किए, नहीं किए, क्या हुआ है, पिन ड्रॉप साइलेंट। सीन अब ये हुआ है कि निवातम एयर बेस पर हमले के बाद आज यमन ने अपना वो दरवाज़ा खोल लिया है जो पिछले काफ़ी अरसे से बंद था। अब वो उस लेवल पर जा रहे हैं कि जहां पर रूस उनको क्या S-400 देने के लिए जा रहा है, ने रजामंदी भी जाहिर की। उस पर उन्होंने डिमांड ये की थी कि हमें एडवांस हथियार चाहिए, वो S-400 भी चाह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें। अब S-400 एक ऐसी आइटम है कि आप इमेजिन करें, इजराइल ने जब हमला किया था, आपको ईरान का हमला तो पता है, ईरान ने जो हमला किया इजराइल पर वो कितना तबाहकुन था। जो आखिरी हमला था वो इतना तबाहकुन था कि पूरी दुनिया के अंदर रोंगटे खड़े हो गए थे कि जो हमला किया था। अब आप अंदाज़ा करें 2 मिनट के लिए उस हमले को आप कम से कम 500% से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लें। ये असल में अल्फाज थे इजराइल के कि हम उससे इतने गुना ज़्यादा हमला करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा हमला जो तारीख में कभी भी नहीं हुआ। ये अल्फाज थे नेतन्याहू के। अब जब इन्होंने हमला किया तो आप हमले की हालत देख लें कि लोगों के माइंड के अंदर ये याद ही नहीं है कि इजराइल का हमला क्या था। यानी उन्होंने जो हमला किया था उसमें तकरीबन 20% उन्होंने अपना हमला कामयाब किया, 80% रोक लिया, और उसको जो रोका था वो S-400 ने रोका था। अब S-400 जाहिर सी बात है एक ऐसी बला है जो कि दुनिया में आपके लिए बड़ा काम करता है। आप सोचें, इंडिया वो इस्तेमाल करता है, रूस वो इस्तेमाल करता है, चाइना कभी ज़िंदगी में किसी का डिफेंस सिस्टम इस तरह नहीं लेता जब तक उसको ये पता ना हो ये कोई बला है। तो चाइना भी S-400 इस्तेमाल करता है, तुर्की के पास भी S-400 है, और बहुत सारी ताकतें। अब यहाँ जो सीन असल में है वो एक तो बड़े खतरनाक मिसाइल जो रूस के पास हैं वो यमन आने वाले हैं। यमन अब उन मिसाइलों को इजराइल को तो टारगेट करेगा, वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी टारगेट करने के लिए जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट करेगा, जाहिर सी बात है बदले में उस पर होंगे हमले। ये जो बहुत सारे हमले होंगे मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज पर, वो करेगा यमन, लेकिन उसके पीछे रूस के टारगेट्स होंगे। यानी मिसाल के तौर पर रूस असल में अब इजराइल के भी खिलाफ है, क्योंकि उसने जो शाम के अंदर किया है, पहले वो इजराइल के खिलाफ था लेकिन अमली तौर पर मामला सामने नहीं थे। अब जो उन्होंने शाम के अंदर किया, जाहिर सी बात है जिन जगहों पर रूस के फौजी अड्डे थे वहाँ पर इजरायली आ गए हैं और उन्होंने वहाँ से उनको निकाल दिया है, और ये बात उनको हजम नहीं हो रही। तब वो ये चाह रहे हैं कि रूस पर हमला हुआ है इस सारे सेंस में, तो कोई ताकत ऐसी खड़ी हो जो अमेरिका पर भी हमला करे, बरतानिया पर भी हमला करे, और उसके साथ साथ इजराइल पर हमला करे। तो अब आ रहा है रूस मैदान में। अब अनकरीब आपको नजर आएगा कि S-400 के बारे में अमेरिका आपको इन्फॉर्म करता हुआ नजर आएगा कि यमन के पास S-400 आ गया। अब वो S-400 यमन के लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आएंगे रूस के ऑपरेटर्स, वो यहाँ पर आएंगे ओपनली आकर, यानी जो लगाएंगे, और खुफिया तौर पर ये मुकम्मल तौर पर इसको ऑपरेट करते हुए आपको नजर आएंगे। और जो अमेरिका और इजराइल के तैयारे आएंगे हमला करने के लिए, उनके मिसाइलों को रोकेंगे, उनको टारगेट करेंगे, बदले में साथ इनको मिसाइल दिए जाएंगे जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी हिट होंगे और उसके साथ साथ इजराइल के अंदर हिट होंगे। अब इसराइल में जो हिट होंगे अब सकते हैं, सो आने वाले वक्त के अंदर इजराइल अपनी खैर मनाए। अब वो दिन गए, आप हमला करेंगे, आप वेट करेंगे, अगलों ने आपको नहीं छोड़ना। आप बेशक उनकी लीडरशिप को मारने की आखिरी तैयारी करें, अगले ने आपको शारक से पकड़ लिया है। अनकरीब आपको नजर आएगा इन्होंने हमला किया है, वो इनकी एटमी ताकत की सारी एकड़ी निकाल देंगे और कम से कम उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे। कितने यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे
क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर